everyone. Today we will be discussing Banabhatta's novella Kadambari. We will analyze and interpret the text and explore the multiple stories present in it. Banabhatta was a great poet of India, born around the 7th century in a village named Pritikut, situated on the banks of Haranyavahu. He was born to Chitrabhanu and Rajdevi and belonged to a Brahmin family. He was poor but a clever child. He had shown signs of great knowledge and completed his education with great dedication and hard work. He served at the court of King Harshavardhana of Kannauj and acquired a great reputation. Banabhatta achieved a great name and fame as a Sanskrit scholar. It is said that the public library in Aurangabad, Bihar, the real place of his birth, still has the savings of manuscripts of his work. Kadambari is one of the earliest and famous works of Banabhatta. It is a biographical work of Harsha and Kadambari. There is a great pun about this work that while reading the Kadambari, one becomes so engrossed in the novel that even food is forgotten. Harsha Charitra, Chandika Sataka and Parvati Parinaya are the other works of Banabhatta. Harsha Charitra could not be finished by Banabhatta before his death, and so it had been taken over by his son Bhushan Bhatta. It is said that he received many rewards from King Harsha for his work and achievement. Apparently, it is clear that the grammar that he puts into use is flawless, and he uses many figures of speech in his work. His prose appears melodious and rhythmical. He uses longer verses with short and crisp words. It was said that many writers were inspired by him after his time as well. Works like Harsha Charitra and Kadambari reveal that he writes in a Brahmin-centric way. In both the works, Bana has made an attempt to show his Brahmin lineage, giving it a heavenly aspect, and tried to prove that Brahmins originated directly from the gods. He made attempts to show many differences between the Brahmins of the society and the rest. This way, he finally ended up creating a very strong image of himself in his novellas that stands in support of only the Brahmin community. At a point in Kadambari, Bana presents a scenario of the war field where he portrays Brahmins against the average public with non-Brahmin stature in the society. He comments that only Brahmins have the birthright to have knowledge in society. The ones who do not have knowledge are the state enemies with no power whatsoever. Thus, he portrays his enemies as knowledgeless beings. Therefore, it would be better if the right is snatched from such enemies and carried to a graceful existence like himself and his people. A reader can find how caste-centric Bana's writing and ideas were. He received a strong criticism from his fellow courtiers. They decided to approach the king and complain that Bana was involved in some non-Brahminical activities. This news reached Bana, who was eagerly waiting for the king's royal patronage. On calling upon by the king,
Bana politely told the king that he had been sincere and true to his faith, knowledge, and values all along. The king was moved and honored Bana with great hospitality and also gifted him rich rewards. Kadambari is a romantic novel written in Sanskrit. It was composed by Banabhatta in the first half of the 7th century AD. It is divided into two parts, Purva Bhag, an earlier part written by Bana, and Uttar Bhag, the latter part written by Bhushan Bhatta or Pulinda Bhatta, the son of Banabhatta. Banabhatta could not complete it before his death, and therefore his son had to complete the novel. The work can be claimed to be one of the first novels in the world. It can be interpreted that Kadambari is a generic term used for romance or a novel in Kannada and Marathi. The novel has several narrators in the course, and several characters seem to have multiple births. Let us look through the story. नमस्कार, मैं हूं इस धारावाहिक कादंबरी का सूत्रधार। मेरा काम है इस कहानी और इसके लेखक से आपका परिचय करवाना। वात्सायन जी के नाम से हम सभी परिचित हैं। वात्सायन जी के वंशज थे कुबेर, जो एक बहुत बड़े विद्वान थे। कुबेर के पुत्र थे श्री अर्थपति और अर्थपति के पुत्र थे श्री चित्रभानु। चित्रभानु के पुत्र थे हमारे इस कादंबरी के रचयिता श्री बाणभट्ट महोदय। संस्कृत गद्य साहित्य का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। इसकी यशगाथा का अवलोकन हम वैदिक साहित्य में भी कर सकते हैं। कवि सुबंधु कदाचित प्रथम विद्वान थे जिन्होंने संस्कृत गद्य का प्रयोग किया। बाणभट्ट महोदय ने उन्हीं का अनुसरण किया। एक विद्वान के रूप में कलात्मक निरूपण का एक ऐसा अद्भुत स्पर्श दिया कि संस्कृत गद्य संसार के वे आदर्श बन गए। चक्रवर्ती सम्राट हर्षवर्धन जी बाणभट्ट के बहुत ही निकट थे और यही कारण था कि हर्षचरितम उन्होंने बाणभट्ट से लिखवाया। बाणभट्ट एक इतिहासकार नहीं अपितु साहित्यकार थे, एक नाटककार भी थे और एक अभिनेता भी। तो आइए आगे की कहानी हम बाणभट्ट जी के ही मुख से सुनते हैं। शुभकामना, नमस्कार। भूषण भट्ट नामाहम अभिवादे। आयुष्मान भव। पूज्य पिताश्री, आप ये जो नया उपन्यास लिखने जा रहे हैं, कृपया उसके संबंध में हमें कुछ बताएं। हाँ, कुछ बताइए ना। वत्स, ये उपन्यास कादंबरी नामक एक कन्या के जीवन पर आधारित है। इसकी शुरुआत ऐसे होती है। शूद्रक नाम का एक राजा था जो देवराज इंद्र के समान प्रतापी था। वेत्रवती नदी से घिरी हुई सकल समृद्धिपूर्ण विदिशा नगरी उसकी राजधानी थी। महाराज शूद्रक सभी शास्त्रों के ज्ञाता एवं कलाओं के जनक थे। वे धर्म के साक्षात स्वरूप थे। उनकी आंखों में लक्ष्मी हंसती थी तो वाणी में सरस्वती बोलती थी। वे सौंदर्य में कामदेव के समान तो बुद्धि में बृहस्पति के समान थे।
यूं कहें तो सभी गुणों का सम्मिलित रूप थे महाराज शूद्रक। उन्हें बैर था तो संभोग सुख से। एक सुबह स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः चिरम् अभिवर्धताम् रविसन्तानश्रीः श्री 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 शूद्रक महाराजः अस्य क्षेमस्थैर्य वीर्य आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिं भवन्तो महान्तो अनुगृह्णन्तु तथास्तु। महाराज की जय हो। राजन, राजलक्ष्मी की तरह तेजस्विनी, अति सुंदर चांडाल कन्या आपसे मिलना चाहती है। उसके हाथ में एक पिंजरा है जिसमें एक चमत्कारी तोता है। वो उसे रत्न समझती है क्योंकि वो मनुष्यों की तरह बोलता है। उसके अनुसार सभी अमूल्य निधियों पर राजा का अधिकार होता है, इसलिए वो उसे आपको भेंट स्वरूप देना चाहती है। उसे आने दो। जो आज्ञा। ओह, इतनी सुंदर, आश्चर्य। इस पर तो संसार का संपूर्ण सौंदर्य न्यौछावर कर देना चाहिए। मानो मानो चंद्र किरणों को वस्त्राभूषण से सजा दिया गया हो। सचमुच सुंदरता की पराकाष्ठा। महाराज, ये अत्यंत अद्भुत तोता है। इसका नाम वैशंपायन है। ये सभी शास्त्रों के मर्म का ज्ञाता है। इतिहास, पुराण एवं नीति में निपुण ये तोता काव्य, संगीत और ज्योतिष में प्रवीण है। इस विशेष रत्न पर आपका ही अधिकार है, इसलिए मैं इसे आपके पास ले आई हूँ। कृपया इसे स्वीकार कर मुझे अनुग्रहित करें। स्तनयुगम अश्रुस्नातं समीपतरवर्ती हृदय शोकाग्निः चरति विमुक्ताहारं व्रतमिव भवतो रिपुस्त्रीणां। राजन, विजयी भव। विद्वान सभासदों, क्या आपने इस तोते की कविता मई स्पष्ट वाणी सुनी? पक्षी होते हुए भी मनुष्यों की तरह शिष्टाचार से अपना दायां पैर उठा के नतमस्तक हो इस तोते ने मेरा अभिवादन किया। ओह, इस तोते ने मुझे आत्मविभोर कर दिया। मैं इस तोते से अति प्रसन्न हूं, अति प्रसन्न हूं। राजन, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। प्राचीन काल में पशु पक्षी भी मनुष्यों की तरह बोला करते थे। हाँ महाराज, वो तो अग्निदेव के शाप का परिणाम था, जो कालांतर में तोतों की वाणी में वर्णों के स्पष्ट उच्चारण की कला का लोप हो गया और साथ ही साथ हाथियों की जिह्वा उलटकर कंठ की ओर घूम गई। हे आदरणीय बालिके, आप हमारे अतिथि गृह में विश्राम कीजिए। इस तोते को हमारे अंतःपुर में लाया जाए। शोक वैशंपायन को लाया जाए। लीजिए महाराज। आपने इन्हें भोजन कराया? राजन, राजमाता ने स्वयं अपने हाथों से इन्हें भोजन कराया है। ठीक है, ठीक है। राजन,
मैंने बहुत खाया, मधुर रस पीकर जामुन का कसेला व मीठा रस पिया, मोती के दानों जैसे गुलाबी अनार के दाने कुतर कुतर कर खाया, कमल के पत्तों जैसे हरे एवं अंगूर जैसे मीठे आमलों को इच्छा अनुसार चखा। ओ राजन, कितना स्वादिष्ट था वो सब। ठीक है वैशंपायन जी, मेरी उत्सुकता मिटाने की कृपा करें। मैं आपका पूरा जीवन चरित्र सुनना चाहता हूं। आपका कब कहां जन्म हुआ, आपका नाम किसने रखा, आपके माता पिता कौन हैं, वेदों और शास्त्रों का ज्ञान आपको कैसे प्राप्त हुआ, आपकी स्मरण शक्ति पूर्व जन्म के संस्कार से मिली या किसी ऋषि से वरदान रूप में। कहीं आप इस रूप में छिपे हुए कोई महापुरुष तो नहीं है? इस चंडालिका के हाथों में कैसे पड़ गए? कृपया वैशंपायन सविस्तार बताएं। बताइए। महाराज, ये कथा तो बड़ी लंबी है, किंतु यदि आप इतने उत्सुक हैं तो मैं अवश्य सुनाऊंगा अपना जीवन वृत्तांत। विंध्यारण्य बहुत ही पवित्र एवं रमणीय वन है। यह भारतवर्ष का केंद्र बिंदु है। उसी वन में एक अति प्राचीन वृक्ष की शाखा पर बने घोंसले में मेरा जन्म हुआ। जन्म के कुछ क्षण पश्चात ही मेरी माता का देहांत हो गया। मेरे बूढ़े पिता ने ही मेरा पालन पोषण किया। राजन, एक दिन बड़ी ही अमंगल घटना घटी। प्रातः काल सभी पक्षी चारे की खोज में उड़ गए थे। केवल छोटे चूजे ही घोंसलों में बचे थे। उस दिन मेरे पिता भी भोजन की खोज में नहीं जा सके थे। मैं अक्सर उनके पंख के भीतर ही सो जाया करता था। कुछ समय तक आराम करने के बाद वे चले गए, जबकि एक बूढ़ा वहीं खड़ा सोच रहा था। उसने पूरे वृक्ष को नीचे से ऊपर तक देखा। अपनी लाल लाल आंखों से मानो वो हमारी आयु को सोख रहा था। मेरे पिताजी डर से कांपने लगे। वो मुझे बचाने के लिए बहुत चिंतित हो उठे, पर वे भली भांति समझ गए थे कि उस आकस्मिक विपत्ति से बचने का कोई उपाय नहीं था। इसलिए उन्होंने मुझे सीने से लगाकर चूमा और फिर पंखों से ढककर छाती से लगा लिया। धीरे धीरे वो बूढ़ा पापी हमारे वृक्ष पर चढ़ने लगा। वह हमारे घोंसले के एकदम समीप आ गया। काले सांप जैसे बाहें फैलाकर उसने हमारे घोंसले में डाल दी। मेरे पिताजी ने बचाव के लिए उसके हाथ पर बार बार चोंच से प्रहार किया, किंतु अंत में हत्यारे ने मेरे पिताजी की गर्दन मरोड़कर उन्हें मार डाला। वह पंखों के बीच में छिपे हुए मुझे न देख सका। पिता के पंखों में छिपे मैं भी भूमि पर आ गिरा। मैं भाग्यशाली था जो मृत्यु के मुंह से बच निकला था। उस दुष्ट के नीचे उतरने से पहले ही मैं निष्ठुर मरे हुए पिता को छोड़कर अपने जीवन की रक्षा हेतु पास के एक तमाल वृक्ष की जड़ में छिप गया। थोड़ी देर बाद पेड़ से उतरकर उस बूढ़े पापी ने भूमि पर फैले हुए पक्षियों को इकट्ठा किया और चला गया। उसके चले जाने पर मैं अपनी प्यास बुझाने हेतु पानी की खोज में इधर उधर घूमने लगा। पृथ्वी पर लुढ़कते लुढ़कते मैं थक चुका था।
मैं मन ही मन में सोचने लगा, सभी प्राणियों के लिए संसार में जीवन से अधिक प्रिय कोई वस्तु नहीं है। सरोवर के पास में ही महर्षि जाबाली का आश्रम था। उनके पुत्र हारी सरोवर में स्नान करने हेतु आ रहे थे। ओह, इतना तेजस्वी रूप, मानो प्रातःकालीन सूर्य को गढ़कर बनाया गया हो। कितने शुद्ध और कितने पवित्र। अरे आह, शुक, वाह, कितना प्यारा शुक शावक है। कौन हो तुम? तुम्हारे माता पिता कौन है? कहां से आए हो तुम? कदाचित किसी वृक्ष की शाखा से तो नहीं गिर पड़े, अथवा किसी बाज पक्षी के मुंह से गिर पड़े? बहुत प्यासे हो, अभी तुम्हें पानी देता हूं। लो, पी लो। चिंता न करो शुक, यहीं समीप में हमारा आश्रम है। मैं तुम्हें वहीं ले चलता हूं, वहां तुम्हें कोई चिंता नहीं होगी। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। केनेषितं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः, केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचोह वाचं सौ प्राणस्य प्राणश्चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्यधीरा प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति। ओम शांति शांति शांति। हारित, ये शुक कहां पा गए? पिताश्री, सरोवर के किनारे किसी वृक्ष के घोंसले से गिर गया था। क्या मैं इसे यहां आश्रम में रख सकता हूं? पंख आने पर स्वयं उड़ जाएगा, अथवा हमारे साथ यहीं रहेगा। ये अपने ही दुष्कर्मों का फल भोग रहा है हारित। ऋषिवर, इसने कैसा अपराध किया था? हाँ, पूर्व जन्म में ये कहां और कौन था? हाँ पिताजी, बताइए, इसका पूर्व इतिहास बताइए। ये एक वृहद कथा है। अवंती राज्य में अमरलोक की सुंदरता को भी लज्जित करने वाली एक नगरी है, उज्जैनी। मानो सत्य और धर्म की जन्मभूमि हो। मंदिरों के इसी नगर में महाकाल भगवान शंकर निवास करते हैं। उसी नगरी में प्रजा की पीड़ा हरने वाला भरत जैसा एक महान राजा तारापीड़ था। उसने अपने बाहुबल तथा सद्चरित्र से पूरे भूमंडल को जीत लिया था। समस्त शास्त्रों एवं पुराणों का मर्मज्ञ ब्राह्मण शुकनास तारापीड़ का मंत्री था।